root word of polity, politics, and political all are same, that is state, city state, police. It is a Greek word. So state is so central. One of the thinker, Garner, says politics begins with the state, ends at the state. Another thinker, Gettel, says पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ स्टेट. राज व्यवस्था हो, राजनीति हो, राजनैतिक हो, सबके केंद्र बिंदु पे तो राज्य है ना. तो स्टेट इज ए पॉलिटिकल, स्टेट इज ए लीगल एंटिटी हैविंग 4 एलिमेंट: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी. सॉवरेंटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेट टू हाँ, संप्रभुता, ताकि फाइनल डिसीजन हो. नहीं तो अगर संप्रभुता नहीं रहेगी तो कोई कहेगा ये होना चाहिए, कोई कहेगा वो होना चाहिए, कोई कहेगा हम सही, कोई कहेगा हम सही, कोई कहेगा वो सही. There will be no finality of decisions. So sovereignty lies legally with the state, practically exercised by the government of the day. Government having 3 branches: executive, legislature and judiciary. Implementation of law, making of law, interpretation of law. In India, 3 tiers of the government: union government in part 5, state government in part 6, and local bodies in part 9, Panchayati Raj, and 9A, urban local bodies, municipalities, Nagar Palika, Nagar Raj institution. This I have discussed in last class. Every branch of government is having separation of powers. This is vertical tier of government: central, state and local. This is horizontal separation of powers, that is executive, legislature, judiciary. Executive is further divided into 2 parts: political executive and permanent executive. In democracy, political executive is owing its position to the mandate of the people. Permanent executive, bureaucracy, owe their position to the merit. Mandate and merit both are part of executive. Legislature in center is parliament. Judiciary in center is Supreme Court. Executive, political executive at the state level is Council of Ministry headed by Chief Minister. Legislature is Vidhan Sabha, in some states Vidhan Parishad. Judiciary is High Court. In local bodies, with Gram Sabha is the legislative body, Gram Panchayat is the executive body, and for group of villages, Gram Nyalay is the judicial body. This is how we see separation of powers, tiers of the government, and I discussed that Aristotle used polity in 2 ways. One as form of constitution and another as form of government. Aristotle said that polity was the best and most practicable form of government, and man is the worst animal without state government and laws. ये तो कर चुके हम लोग कल, इसका सिर्फ रिविजिट कर रहे थे. Form of government. As far as constitution is concerned, this is supreme law. But all laws are not equally prioritized. Supreme law is constitution in hierarchy of laws, CL, constitutional law. Below that, statutory laws. Below that, case laws. Below that, government orders. Below that, tradition and customs. This is a hierarchy of laws. In wake of conflict between constitutional law on one hand and other laws on the other hand, constitutional law will prevail. This is how form of constitution. दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 2 भाग होते हैं. भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, विच इंक्लूड्स गवर्नेंस. Not only government. Government is an institution. Governance is a process of interaction of government, citizens, civil society and market. So which one is broader process? Governance, शासन. सरकार एक संस्था है, सरकार एक मानवीय संगठन है जिसके 3 अंग हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी.
जबकि गवर्नेंस एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें गवर्नमेंट, सिटीजन्स, सिविल सोसाइटी एंड मार्केट all are interacting. So in supreme law constitution, we have rights and duties of citizens. We have tiers of the government, their powers and functions, the relation with civil society, trade and commerce also, so 301 to 307. All are part of constitution. So for anything, for any kind of study, for any kind of system of learning in human society, there are two things: what should be and what institutions are meant to implement that desirability. क्या होना चाहिए और उस होने चाहिए को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं. तो क्या होना चाहिए, ये एक फिलॉसफी. तो कॉन्स्टिट्यूशन के दो भाग होते हैं. एक है प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड फिलॉसफी. Philosophy means, philosophy is called mother of all sciences. What is philosophy? Philia means love. Sophie means wisdom or pure knowledge. Love for wisdom, higher, noble, desirable goals. Philosophy क्या है? Higher goals. Principles which are followed as a matter of faith and commitment. Values, objectives, priorities. So in our constitution, principles are there in preamble, part 3 and part 4. They are mainly containing principles. क्या होना चाहिए. लेकिन सिर्फ क्या होना चाहिए बोल के खत्म हो जाएगा काम. वो होना चाहिए, वो डिजायरेबिलिटी है, वो ऑब्जेक्टिव्स है, वो फिलॉसफी है. उसको धरातल पे उतारने के लिए, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट यू नीड? इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन. And this organization starts with part 5. Part 5 is union government. So union government is a principle or institution. Institution to realize those principles. दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें एक बात होती है फिलॉसफी, क्या होना चाहिए, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसको धरातल पे लागू करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं. केवल बोले ऑनेस्टी होनी चाहिए और सीबीआई ना बनाए, कोर्ट ना बनाए, लोकपाल बिल ना पास करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ना बनाए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ना बनाए, और बोले ईमानदारी होनी चाहिए, सबको ईमानदार बनना चाहिए. होगा? समानता होनी चाहिए. और कोई ना सरकार है, ना कोई संस्था है, ना कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ना सोशल जस्टिस है, ना इकोनॉमिक जस्टिस है, ना पॉलिटिकल जस्टिस है, उसको लागू होना चाहिए से कैसे होगा? तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू इंप्लीमेंट दोज नोबल प्रिंसिपल्स, गोल्स, हायर आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑन ग्राउंड इज union government. So our constitution is broadly categorized into two parts. Preamble up to part 4a are principles, and part 5 onwards institutions. 4a is fundamental duties of citizens. That is also principle. That is also principle. अब फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है क्या होना चाहिए, और उन होना चाहिए या लागू होना जो चाहिए, प्रायोरिटीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको धरातल पे उतारने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन. तो पार्ट 5 ऑनवर्ड्स. पार्ट 6 क्या है? स्टेट गवर्नमेंट. दैट इज टू इंप्लीमेंट दोज फिलॉसफी. Part 7 is blank because of reorganization of the state 1956. Part 8 is union territory. Part 9 is Panchayati Raj. 9A is
municipalities. 9B is cooperatives. 10 cooperative societies, yes. That 97th constitutional amendment 2012 added 191C as a fundamental right, cooperatives. 43B in DPSP, part 9B, and article 243ZH to 243ZD. 2021 a new ministry of cooperation was created, and Amit Shah is the minister for it, and theme of it is सहकारिता से समृद्धि की ओर. सहकारिता मतलब कॉपरेटिव्स होता क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल coming together, organization, to pool their resources, to pool their efforts, and to set a goal and to have teamwork facilitated by government, regulated by government. So cooperatives, सहकारिता से समृद्धि की ओर. सहकारिता यानी कोऑपरेटिव. बेस्ट एग्जांपल इज अमूल. दुनिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोऑपरेटिव का, या भारत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमूल. अमूल की शुरुआत पता है कैसे हुई थी? आनंद गांव से हुई थी. पीजे कुरियन एक छोटे से गांव से मिल्क प्रोड्यूसर्स साथ आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना पूल किया. फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, हाँ, स्टार्टिंग तो जो विलेजर्स से उन्होंने किया, टेक्निकल हेल्प, फिर बाद में गवर्नमेंट का हेल्प, रेगुलेशंस, प्रायोरिटी लेंडिंग, बोरोइंग, सब फैसिलिटी तो बाद में मिली, और आज वो इंटरनेशनल ब्रांड है अमूल. तो कोऑपरेटिव्स हैज ह्यूज पोटेंशियल टू डीबर्डन गवर्नमेंट ऑन वन हैंड, to promote non-state activity and initiative, and to ensure prosperity by coming to a voluntary association of the people. हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स उसी को फैसिलिटेट करने के लिए. कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, हाँ, उनको प्रायोरिटी लेंडिंग करते हैं, उनको कई फैसिलिटीज देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, तभी तो काम करेंगे. कोई भी बिजनेस क्रेडिट चाहिए, है ना, सेविंग को पूल करने का अलग चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटी देते हैं, विड्रॉल फैसिलिटी देते हैं. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो तो प्राइवेट में था. कोऑपरेटिव, हाँ, वो भी इसीलिए था. जैसे आप लोग कमिटी यही था. जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव्स है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, क्या है, सर ऐसा ही हुआ था. 1-1 रुपया रोज दो, 1-1 रुपया आपको रोज बचा के सहारा को देना है. तो करोड़ों लोग जब इकट्ठा हो गए तो बड़ा कैपिटल बन गया. जब बड़ा कैपिटल बन गया तो मल्टीप्लाई होने लगा, लोगों को रिटर्न भी काफी मिलने लगे. लेकिन फिर एक समय के बाद उसका कई चीजें फ्रॉड और कई चीजें बाद में निकल के आई, वो बात अलग है. हाँ, तो ऐसे, हाँ हाँ, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से, स्वयं सहायता ग्रुप, आज पता है 10 करोड़ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ी हुई हैं, और जिसमें लगभग 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं. लखपति दीदी. तो सभी काम सरकार नहीं करेगी. स्टेट को डीबर्डन करना है, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना है, इंटरप्राइज को, इनिशिएटिव को बढ़ावा देना है, कलेक्टिव इंटरप्राइज को बढ़ावा देना है, सामूहिकता को बढ़ावा देना है. 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c, हाँ बिल्कुल हो गया. हाँ, 19(1)(c), 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012. 97th अमेंडमेंट से 19(1)(c फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा कोऑपरेटिव्स को. 43B डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जोड़ा, पार्ट 9B में भी जोड़ा, और आर्टिकल 243ZH टू 243ZD में भी जोड़ा. ZH हाँ, 39 कौन सा? नहीं, मैं बता रहा हूं. जो पार्ट 9 में है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन,
एक 243 ओ से लेके 243 ओ, वेट वेट थोड़ा सा वेट कीजिए। पार्ट 9 ए, ये है अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पालिका। ये है 243 पी टू 243 जेड जी। और 9 बी कोऑपरेटिव्स, ये 97th अमेंडमेंट 2012 से जोड़ा गया, जो है 243 जेड एच टू 243 जेड टी। ये अब क्लियर होगी। 9 बी है, ये 2012 में जोड़ा गया। तो ये 19(1)(c) में फंडामेंटल राइट में भी यहाँ जोड़ दिया गया, 43(b) में भी जोड़ दिया गया, डीपीएसपी में जोड़ दिया गया, पार्ट में भी जोड़ दिया गया, आर्टिकल्स में भी जोड़ दिया गया, और मिनिस्ट्री बना दी गई 2021 में। कोऑपरेटिव्स को का रोल बहुत ज्यादा है कुछ स्टेट्स में, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में, और कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में। उसका हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन उसको लेट से मिला है। ठीक है, देखिए स्टेट हर जगह बर्डन नहीं करेगी, अपने आप को डी बर्डन करेगी, प्राइवेट सेक्टर को, कलेक्टिव इंटरप्राइज को, नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करेगी। गवर्नमेंट है, गॉड नहीं। तो लोग भी इनिशिएटिव ले, सरकार उसको फैसिलिटेट करेगी, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हों, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, चाहे एनजीओज हों, चाहे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हों। तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। सरकार के रोल को कम करना और नॉन स्टेट एक्टर के रोल को बढ़ाना। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। समझ में आ रहा है? तो गवर्नेंस में आएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं ये, तो कोई भी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पहला भाग होता है फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, नोबल, डिजायरेबल, ऑट टू बी, शुड बी। और दूसरा पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू इंप्लीमेंट देम ऑन ग्राउंड। ठीक, तो पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 ब्लैंक है। था कभी, कभी था 56 एबीसीडी कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, अब नहीं। हाँ, एबीसीडी कैटेगरी ऑफ स्टेट्स वो खत्म कर दिया। फिर पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज। एट प्रेजेंट वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। दादर नगर हवेली और दमन दीव मर्ज कर दिया गया 2020 में, और 8 कर दिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले ना सिर्फ फुल फ्लेज स्टेट था बल्कि स्पेशल स्टेटस था, उसका स्टेट का दर्जा भी छीन लिया और उसको यूटी बना दिया अंडर आर्टिकल 239A। यूटीज। देन आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी 9 is Panchayati Raj, 9A is municipalities, 9B is cooperatives. They are all institutions or not? They are all institutions to implement them. This is noble goals. इसको लिखते जाइए आप लोग, ऐसा नहीं जैसे कल भी लिख लिए थे ना सारा लोग, क्योंकि लिखते जाने से क्या होता है, क्योंकि मैं वो फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा जो बुक में है, मैं पूरा फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैथमेटिक्स जैसा लिखूंगा मैं। ये गोल्स है, वैल्यूज है, ये नोबल, डिजायरेबल। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? नोबल एंड डिजायरेबल यानी वांछनीय, क्या होना चाहिए। कोई भी सिस्टमेटिक स्टडी में दो ही चीजें होती हैं, एक फिलॉसफी और दूसरा इंप्लीमेंटेशन। क्या होना चाहिए और उन होने चाहिए को कैसे लागू करेंगे।
this is UT, that is Union Territory. Part 8. Part 9, PRIs, that is Panchayati Raj Institution. 9A is NRIs, Nagar Raj Institution. And 9B is cooperatives. हाँ, नगर राज, नगर राज इंस्टीट्यूशन मतलब म्युनिसिपलिटीज। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स आर देयर इन मेनली प्रियम्बल पार्ट 3, पार्ट 4 एंड अप टू पार्ट 4A मेनली। पहला भाग प्रिंसिपल का है और पार्ट 2 जो है वो इंस्टीट्यूशंस का है। देन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियन एंड टेरिटरी है पार्ट 1, यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब है इंस्टीट्यूशंस में पार्ट 10, शेड्यूल्ड एरियाज। क्या? हाँ, एरिया अप्रोच। एरिया अप्रोच इज फॉलोड फॉर विच कम्युनिटी? SC, ST, OBC, पुअर्स, women, differently abled, ST. Because the ST population is specific to forest area, so area approach is followed for ST. जल, जंगल, जमीन, जानवर, फूड, फॉडर, फ्यूल, ST का। बाकी लोगों का पॉपुलेशन तो स्कैटर्ड है, लेकिन ST का पॉपुलेशन फॉरेस्ट स्पेसिफिक है। तो ST के लिए क्या फॉलो करते हैं? एरिया अप्रोच। What is the purpose? Their way of living is different from mainstream life. So, should we impose our way of life or giving them autonomy, self-rule, autonomy? So this is the reason why Article 244(1) in Schedule 5 for the STs which are more mainstreamed, and the primitive STs 244(2), Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, Schedule 6. Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, ST। मैं बता रहा हूं, वेट। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल्स आर हाईलाइटेड, सेपरेटली लिस्टेड, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल्स आर देयर। देखिए, मैं अभी बता देता हूं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है और पार्ट्स उसके चैप्टर्स हैं और आर्टिकल्स उसके पैराग्राफ्स हैं, तो क्या एक बुक के सारी लाइनों को आप अंडरलाइन करते हैं या जिनको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं उसी को अंडरलाइन करते हैं? एग्जैक्टली। तो शेड्यूल्स वही है। दोज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12, those part of the constitution which are very important, they are underlined, separately listed, are called schedules. Schedule means constitutionally listed, अनुसूची। no, बेसिक फीचर अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। नहीं, वेट, मैं बता रहा हूं अभी।
शेड्यूल ट्राइब सिंपल मेजोरिटी से होता है, बेसिक स्ट्रक्चर अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। वो ये जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। एसटी पॉपुलेशन मस्ट गेट सेल्फ रूल एंड ऑटोनॉमी। हम अपना जीवन जीने का तरीका उन पे थोपे नहीं, हजारों साल से वो अपना जी रहे हैं। तो अगर हम उन पे थोपेंगे, इंपोज करेंगे, तो अलगाव हो बढ़ेगा, सेपरेटिज्म बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उनको स्पेस देते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं, सेल्फ रूल देते हैं कि भाई आप अपना ज्यादातर डिसीजन आप खुद से लीजिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट आड़े आएगी ना स्टेट गवर्नमेंट आड़े आएगी। तो इसका पर्पस है ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रूल टू एसटीज, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रूल टू एसटीज। अब ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो एसटी हैं, और जो झारखंड के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, बंगाल के एसटीज हैं, हाँ, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको सिर्फ एग्जीक्यूटिव मामलों में ऑटोनॉमी है। इनको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों ही मामलों में ऑटोनॉमी। यानी कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट दखल करेगी ना तो स्टेट गवर्नमेंट दखल करेगी। हाँ, ऑटोनोमस काउंसिल बना हुआ है उनके। अपने एरिया में आप अपने अनुसार रूल करो, अपना ट्रेडिशन, अपना कस्टम, अपना जल जंगल जमीन जानवर। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो है। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस में फर्क होता है। इंडिपेंडेंस इज सेपरेट सॉवरेन इंटिटी, ऑटोनॉमी इज विद इन ओवरऑल कंट्रोल बट मोर सेल्फ रूल। हाँ, परिवार से अलग नहीं करना लेकिन स्पेस देना, वो ऑटोनॉमी है। और परिवार से अलग कर देना, वो सेपरेशन, इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंटिटी। तो अगर हम परिवार के अंदर किसी को ऑटोनॉमी नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो क्या कहेगा हम अलग होना चाहेंगे। अगर हम उनको स्पेस देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, और उनको लगेगा बड़े के साथ रहने में ज्यादा फायदा है, तो क्यों सेपरेटिज्म आएगा। हम्म। नहीं तो शेड्यूल 6 तो ऑटोनॉमी उसी के कारण तो नागा और कुकी जो है, जो मणिपुर है, उसमें दो पार्ट है। एक तो जो प्लेन है वहां मेतईज हैं, मेतईज यानी कि जो आर्यनाइज्ड हैं, हिंदू मेनली। हिल है वहां पे नागा एंड कुकी क्रिश्चियंस। तो यही उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट है, कुकी वर्सेस मेतई। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि डोमिनेंस की लड़ाई हो जाती है कि एक काउंसिल में, जैसे एक सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, उसमें पहले नागा और कुकी में लड़ाई होती थी कि हमारा ध्वंस आएगा, हमारा चलेगा, हमारी मेजोरिटी, हमारी सरकार। तो उसको काउंसिल को ही दो भागों में बांट दिया, एक नागा डोमिनेटेड, एक कुकी मेजोरिटी। सेटल हो गया। मेन बात है सेल्फ रूल देना, ऑटोनॉमी देना। अगर पंचायतों को पंचायती राज है तो ट्राइबल्स को भी तो ट्राइबल राज है। अगर जनधन है तो वनधन भी तो है। नहीं तो एसटी जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा हैं, देयर लाइफ इज मोर प्रिमिटिव, सो दे नीड मोर ऑटोनॉमी, so they have more powers in all matters, executive, legislature and judiciary. But in 10 states of India like Jharkhand, Odisha, Bengal, Karnataka, Andhra, they have less autonomy and only executive power to tribal advisory council. ये हाँ हाँ, जो जो प्रिमिटिव है, जो जो वैसे कम्युनिटीज हैं, उनको अलग से एक दिया गया है स्टेटस, कि जो जिनका लाइफ बहुत ही प्रिमिटिव है उनको यहां पे लाया गया। हाँ, आसाम, मेघालय में। आप लोग कभी गए हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा? अगर आपने आइडिया हो तो वहां पे अभी भी बहुत प्रिमिटिव लाइफ है। अभी भी लोग बहुत दूर दराजा वाले इलाके में वैसे ही जी रहे हैं, मछली मार के खाना, जानवर पालना। हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बंदूक नहीं, वहां पे उनकी काउंसिल को ऑटोनॉमी है। वहां पे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी ना स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी, वहां उनकी काउंसिल की चलेगी। उन पे हम अपना जीवन थोपेंगे नहीं कि हम जैसे जी रहे हैं वैसे आप जियो। हाँ हाँ, बिल्कुल अलग है।
वो आप नागालैंड की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो अलग छोड़ दीजिए उस बात को, वो इनफॉर्मल बात है। नागालैंड में जो आप कह रहे हैं होता है ऐसा? असम में तो नहीं होता। किस एरिया में है? असम में तो कभी नहीं हुआ। लेकिन असम में जब उल्फा थी तब होता था। उल्फा जब थी ना तब। असम में भी रहा हूँ काफी समय, 8-10 महीने रहा हूँ। तो असम में तो जब उल्फा थी तब थी बात, अभी नहीं। तो खैर, पार्ट 10 समझ में आ गया। जल, जंगल, जमीन, जानवर, फूड, फॉडर, फ्यूल, ये, हाँ, इनका डिपेंडेंस है इस पे लाइफ, एसटी का। एसटी एरिया अप्रोच इज फॉलोड ओनली फॉर एसटी, नॉट फॉर अदर कम्युनिटीज। समझ में आ गया? तो ट्राइबल्स के लिए है पार्ट 10। पार्ट 11, मैं कहता हूं 11 जब भी बोलना है पॉलिटी में तो बोलिए 5+6 = 11। अब आप बोलेंगे कि मैं 5+6 = 11 होता है, मैं बोलूंगा 9+2 + 2 = 11 होता है। कोई बोलेगा 7+4 = 11 होता है। फिर मैंने क्यों बोला 5+6 = 11? बिकॉज 5 यूनियन गवर्नमेंट, 6 स्टेट गवर्नमेंट, एंड 5+6 इज यूनियन स्टेट रिलेशन। यूनियन स्टेट रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263। कौन सा रिलेशन? क्या फाइनेंशियल रिलेशन? नो, लेजिस्लेटिव फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। टू prevent any kind of friction, ambiguity, confusion, or conflict between central and state government, the relations have been defined by the Supreme Law. जब कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों का एरिया बांटा है, सब्जेक्ट बांटा है, रिलेशन डिफाइन किया है, तब भी मोदी और ममता बनर्जी इतना लड़ते हैं। अगर नहीं किया होता तो कितनी लड़ाई होती। सुप्रीम लॉ हैज डिफाइंड द रिलेशन। बिल्कुल। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, रिलेशन। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। कार्डर सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज में होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी में नहीं होता। तो 300 आर्टिकल 312 में है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इनको ट्रेनिंग कौन देता है? सेंट्रल डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, सेंटर, बट दे वर्क इन स्टेट कार्डर, सो they cannot be removed by the state government, because article 311 says a person cannot be removed by an authority lower than appointing authority. अगर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो गवर्नर नहीं हटा सकता। ये क्या कर सकता है? आर्टिकल 311। यानी गवर्नर तो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे काम करता है और प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो पर्सनल हैं, काम तो स्टेट कार्डर में करते हैं, लेकिन गवर्नर या चीफ मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट किससे मिलता है? प्रेसिडेंट, हाँ, यूनियन। तो उनको स्टेट गवर्नमेंट हटा नहीं सकती, सेंटर को रिकमेंड करना पड़ेगा, हाँ, हटा नहीं सकती। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। A person cannot be removed by
एनी ऑथोरिटी लोअर देन अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। हाँ, एक सज्जन सिंह सब इंस्पेक्टर थे राजस्थान के, 1940, मैंने पूरी बात करी, 1948 सब इंस्पेक्टर थे, उनको चीफ ऑफ पुलिस ने अपॉइंट किया था। 1953 में करप्शन चार्जेस में उनको डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस ने हटा दिया। 10 सालों तक केस लड़े, 64 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि ये रिमूवल गलत है, कि चीफ ऑफ पुलिस ने अपॉइंट किया है तो डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस कैसे हटा सकता है। आर्टिकल 311 लग गया। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट हटा नहीं सकती, ट्रांसफर कर सकती है। किसके केस में? हाँ, वापस मिल गई थी पूरे ऑनर के साथ। हाँ, पूरा सज्जन सिंह केस है, राजस्थान का बहुत फेमस केस है। तो आर्टिकल उन्होंने वही हवाला दिया कि करप्शन है नहीं है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कीजिए, आप कोर्ट में सिद्ध कीजिए, वो बात अलग है। लेकिन यहां तो खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया ना। अगर मुझे चीफ ऑफ पुलिस ने अपॉइंट किया है तो डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस कैसे हटा सकता है? हाँ, हाँ, ऊपर से ऊपर। हाँ, नहीं ऊपर, हाँ क्या? और कोई अथॉरिटी नहीं। सर्विस कंडीशन, हाँ, बिल्कुल। वैसे भी डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, तो पे स्केल है, क्लासिफिकेशन है, सर्विसेज है, कार्डर मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग है, ये सब डीओपीटी करता है। डीओपीटी का चीफ कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सेंटर में डीओपीटी का चीफ कौन है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में कोई पंख तो नहीं लगे। वो कैसे कंट्रोल रखता है ब्यूरोक्रेसी पे? क्योंकि डीओपीटी का चीफ है वो। तो ट्रांसफर हो गया, पोस्टिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, डिमोशन हो गया, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो गया, सब डीओपीटी के ऑर्डर से आता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर के अंदर। नहीं, होम मिनिस्टर तो अलग है। हम्म, वो अलग है। हाँ, हाँ, नहीं, आईपीएस को भी नहीं हटा सकता। कैसे हटा सकता है? किसने बताया आपको? होम मिनिस्ट्री रिकमेंड कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वहां पे बात यह है कि प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऐसा मस्ट वर्ड लगाया था 42nd अमेंडमेंट 1976। हाँ, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट। पहले क्या था? प्रेसिडेंट विल। पहले था प्रेसिडेंट विल एक्ट। 42nd अमेंडमेंट 1976 से कर दिया प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वो तो अलग चीज है, वो तो बिल के लिए है ना। पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो पार्लियामेंट से पास किए हुए बिल के लिए है, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए। दोनों में अंतर है। हाँ, सस्पेंड, हाँ कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है सर। हाँ, नहीं नहीं, मैंने दो बातें कही हैं। टर्मिनेशन या रिमूवल नहीं कर सकता स्टेट। सस्पे सस्पेंशन, हाँ 311 ही कह रहा है। सस्पेंशन और ट्रांसफर कर सकता है थ्रू गवर्नर, क्योंकि वर्क स्टेट का ऑर्डर में काम कर रहे हैं ना। हम्म, नहीं, कोर्ट तो किसी मामले में जा सकते हैं जस्टिस पाने के लिए। सस्पेंशन में कोई टिल नेक्स्ट डेट नहीं होता। सस्पेंशन और पोस्टपोनमेंट में फर्क होता है। पोस्टपोनमेंट में बताना पड़ता है कि 24 जून तक ये पोस्टपोन किया गया है। सस्पेंशन में होता है टिल नेक्स्ट ऑर्डर। तो हो सकता है 2 दिन में सस्पेंशन वापस ले ले, हो सकता है 2 महीने में वापस ले ले, हो सकता है महीनों लग जाए। टाइम लिमिट सस्पेंशन में नहीं होता। सस्पेंशन में टाइम लिमिट है, हाँ, पोस्टपोनमेंट में टाइम लिमिट होता है। दोनों में फर्क है। सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी स्थगित करना, पोस्टपोनमेंट यानी तारीख आगे करना। ठीक है। सस्पेंशन का हिंदी वर्ड होता है निलंबन। निलंबित किया गया है, उसमें डेट नहीं होता कि कब बहाल किया जाएगा।
हाँ, नहीं, तभी तो लोग कोर्ट जाते हैं। क्यों जाते हैं अब आप पे भारी करप्शन केस लग गया तो इतना जल्दी सस्पेंशन कैसे वापस होगा? पूरी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, कोर्ट में केस चलेगा, तो इतना जल्दी सस्पेंशन का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बहुत सा चीज होगा, तो कैसे वापस ले लेंगे? तो हाँ, कोर्ट का रास्ता तो किसी के लिए खुला है कि भाई झूठा फंसाया गया है या ये है या ये है, मुझे न्याय चाहिए, वो तो सबके लिए खुला है। कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो यहां पे है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। और पार्ट 12, 264 to 300A, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप। जैसे इसी के अंदर है 280 में फाइनेंस कमीशन, 279A में जीएसटी काउंसिल, राइट टू प्रॉपर्टी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या सिर्फ लीगल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी, यही तो बात है, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार लोग गलती करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन हो गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। नहीं है, नो, ओनली मेंशनिंग ए प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक इट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहले था कभी राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? 1978 44th अमेंडमेंट से पहले, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या फर्क है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड भी है पार्ट 3 में, और उसकी रेमेडी भी उसी पार्ट में। तो फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, they are only mentioned in constitution. In case of violation, remedy is not provided by constitution, remedy is provided by ordinary law. आपका राइट टू लाइफ हनन हो गया तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली तो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। Legal right can be amended by simple majority. Third, constitutional right are both against executive and legislature. Legal right is only against executive, not against legislature. 3 अंतर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में क्या फर्क होता है। राइट टू प्रॉपर्टी कभी था 19(1)(f) में, 31 में। राइट टू प्रॉपर्टी 1978 से पहले तक फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, अब नहीं। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट था तो जो जमींदार थे, राजा थे, रजवाड़े थे, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे, सीधा कोर्ट केस चक्कर जा रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, हमारी संपत्ति को जब्त कर रही है सरकार। तो 44th अमेंडमेंट से कर दिया कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहेगा ही नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, बिल्कुल चाहिए। आर्टिकल 35 ऑफ पार्ट 3 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे। जबकि सिंपल जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, उनको सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। 3 अंतर मैंने बताया ना। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, राइट आर्टिकल 35 है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये कहता है। देखिए एक बात याद रखिए, पार्ट 1 1 से 4, पार्ट 2 5 से 11, तो उसका अंत 4, इसका अंत 11। पार्ट 3 12 to 35, इसका अंत 35। तीनों में एक ही बात है। 4 कहता है रीऑर्गेनाइजेशन सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट करेगी,
11 कहता है सिटीजनशिप में चेंज पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से करेगी। 35 कहता है फंडामेंटल राइट में चेंज पार्लियामेंट करेगी, लेकिन सिंपल से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी। ट्रूथ, स्पेशल मेजोरिटी। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे ये रटने की बात है या समझने की बात है कि ऐसा क्यों है? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट, and that state means not only executive, legislature also, and legislature is a law making body, so without special majority it cannot change। नहीं तो कल को पार्लियामेंट कहेगी, सरकार कहेगी सारे फंडामेंटल राइट को खाली कर दो, कुछ नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि फंडामेंटल राइट से हमें सरकार बार बार परेशान करती है। मतलब ये जो है, हमें सरकार को बार बार परेशानी होती है, नहीं होती है कि बार बार लोग कोर्ट आ जाते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया, उल्लंघन हो गया। तो क्यों ना ऐसा करें कि सारे फंडामेंटल राइट्स को ब्लैंक कर देते हैं, और हमें सिंपल मेजोरिटी तो है ही, मोदी सरकार को 300 तो है ही, मतलब कोएलिशन मिला के, और राज्यसभा में मेजोरिटी हो ही गया, तो पूरा पार्लियामेंट को साफ कर, मतलब पार्ट 3 को जीरो कर दें? नहीं कर सकते। पहली बात तो स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वो भी दोनों में कम से कम टोटल का आधा से ज्यादा वोटिंग करे तब। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट जो है उस पर तो वीटो नहीं कर सकता 2/3 वाले पे, लेकिन जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। हाँ, कई बार पार्लियामेंट के लॉ को जुडिशरी ने खारिज कर दिया है, जैसे एनजेएससी, सुना है एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। जजों की नियुक्ति के लिए 2014 में एक कानून बना, संसद ने स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया, आधे से ज्यादा राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया। 2014 में कानून बन गया, लेकिन केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बोला नल एंड वॉइड। वही उसने कहा कि दिस कॉम्प्रोमाइजेस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर, सो दिस अमेंडमेंट स्टैंड्स नल एंड। खत्म कर। अच्छा, हाँ, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भारत में है कि दुनिया भर में कहीं भी जजेस को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन फेलो जजेस नहीं करते हैं, भारत में है कॉलेजियम सिस्टम, एक। दूसरा, जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है संसद में, रिप्रेजेंटेटिव्स की अकाउंटेबिलिटी है जनता में 5 साल, हर इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल है। जुडिशरी is not directly accountable to any institution, indirectly accountable to the supreme law constitution. This is the reason of judicial activism. इसलिए जुडिशरी कुछ भी बोल देती है। एनसीईआरटी के, हाँ हाँ, बल्कि उनको तो, हाँ बिल्कुल बोला अपराधी माना जाएगा, और उसके डायरेक्टर को सीधा समन कर दिया, कंटेम्प्ट का लगा दिया। वही तो बात है कि जुडिशरी जो है बोलती है कि हमारा फाइनलिटी ऑफ डिसीजन है, तो डिग्निटी ऑफ डिसीजन है, तो पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 वुड बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू इंश्योर फाइनलिटी ऑफ डिसीजन। कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, नहीं तो कोई आर्गुमेंट करने का कोई अंत ही नहीं है। हाँ ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हैं दो बातें हैं। इन इंडिया जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बट नॉट सॉवरेन, सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इन इंग्लैंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम। हाँ हाँ, कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन डालिए कि जुडिशरी आपका डिसीजन गलत है अंडर आर्टिकल 137, वो भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन डालिए, वो भी आर्टिकल 137, वो भी रिजेक्ट हो जाए तो पार्लियामेंट फिर उस लॉ को बदल दे। जैसे SC/ST एक्ट आया था 2018 में, जुडिशरी ने खारिज कर दिया, पार्लियामेंट ने फिर बहाल कर दिया। जैसे शाबानो केस
में राजीव गांधी सरकार ने ट्रिपल तलाक को जो ये था मेंटेनेंस मुस्लिम जो तलाक वाली जो लेडी है उनको मेंटेनेंस देने का मजबूरी खत्म कर दिया। तो कैसा कैसा कई बार हुआ है कि पार्लियामेंट ने जुडिशरी के जजमेंट को पलटने वाला कानून लाया है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ कर सकती है, लेकिन जुडिशरी अपनी मनमर्जी से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगी। ऐसा नहीं कि सारे कानून खारिज कर देगी, तब तो फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। हाँ, तब तो हाँ, ऐसा नहीं है। जुडिशरी का काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। कानून इंप्लीमेंट करना या बनाना उसका काम नहीं है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। नहीं, सही गलत तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। हम्म। वो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वाला केसेस है, वो तो इंटरनल लॉज है। वो तो हाँ, वो तो हाँ हाँ, वो केस लॉज में जजमेंट में है। हम्म, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही बात है। जो 209 फैमिली हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उन्हीं के बच्चे डॉटर सन सारे बैठे हुए हैं घूम फिर के कॉलेजियम सिस्टम्स। इसीलिए तो जैसे सिविल सर्विसेज के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए यूपीएससी है, इसीलिए कहा जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाए। इनका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरिट पे, धारा लोअर जुडिशरी में तो मेरिट पे ले रहे हैं, हायर जुडिशरी में कॉलेजियम से ले रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं बन पाया। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि जुडिशरी नहीं बनने दे रही। खैर, अब ये पार्ट 12 जो है फाइनेंशियल रिलेशन समझ में आ गया। ये है फाइनेंशियल रिलेशन। पार्ट 13 है ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 301 टू 307। हाँ, ट्रेड एंड कॉमर्स। इंटरस्टेट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंटरस्टेट मसला होगा तो उस पर जुरिडिक्शन सेंटर का होगा, विद इन द स्टेट होगा, तब तो स्टेट का मसला है। लेकिन इंटरस्टेट चाहे ट्रेड हो, वाटर हो, रिवर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंटरस्टेट कुछ भी हो, लैंड ही क्यों ना हो, उस पर जुरिडिक्शन सेंटर का होता है। वैसे लैंड स्टेट का सब्जेक्ट, इंटरस्टेट जहां मामला आएगा वहां जुरिडिक्शन सेंटर का होता है। ठीक है, कई बार नदी वल जल विवाद हो जाता है, सीमा विवाद हो जाता है। कई, हाँ, ट्रेड में कोई बोलेगा, आंध्र प्रदेश बोलेगा कि हम अपने मांस मछली दूसरे स्टेट को नहीं भेजेंगे। कर्नाटका बोलेगा हम अपने टमाटर कहीं नहीं भेजेंगे। महाराष्ट्र बोलेगा हम अपने प्याज कहीं नहीं भेजेंगे, हम अपने यहाँ जमाखोरी करेंगे, होर्डिंग करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, सेंटर के पास। इंटरस्टेट ट्रेड पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पेश ही नहीं कर सकते बिना प्रेसिडेंट के मंजूरी, गवर्नर के मंजूरी नहीं। ये कहता है आर्टिकल 304। क्योंकि भारत में सारे राज्यों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये तो नेशनल इमरजेंसी में भी, वार में भी सस्पेंड नहीं होता, कुछ भी हो जाए। बाकी राइट सस्पेंड कर सकते हैं, इसको सस्पेंड भी नहीं होता ये कभी। ये पार्ट 13 है, सस्पेंड नहीं होता। और 20 एंड 21, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड थैंक्स टू 44th अमेंडमेंट 1978। 20 को और 21 को कैन नेवर 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 बी सस्पेंडेड। 42nd, लेकिन 44th ने यह किया कि 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। हाँ, 20 हो गया राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, यानी अपने आप को दोष मुक्त करना, अपने आप को निर्दोष साबित करना। ये सबसे मूल, ये
मूल का मूल है अपने आप को बचाना, राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। हाँ, हाँ उसमें तीन है, 21 में है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ऑन क्रिमिनल मैटर्स टू पनिश मोर, यानी पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे कोई कानून में जब तब्दीली नहीं कर सकते पनिशमेंट ज्यादा करने के लिए। 22 है, 22 में है नो डबल जियोपार्डी, एक ही गुनाह के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। और 23 है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। नहीं। हम्म। हाँ, तो नया ऑफेंस हो गया ना, नया क्राइम हो गया वो। नहीं नहीं, करप्शन, हाँ। अब कोई सुधर गया, सजा काट के कोई सुधर गया, तो अब उससे बदला लेना है क्या? जब तक वो दूसरा क्राइम नहीं करेगा उसको सजा कैसे दे सकते हैं? सजा तो भुगत लिया ना वो। हाँ हाँ। हाँ वो बात अलग, हाँ वो बात अलग, मल्टीपल केसेस प्रूव करना पड़ेगा। जैसे एक फिल्म बनी थी अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी फिल्म है, अंधा कानून। उसमें अमिताभ बच्चन फॉरेस्ट ऑफिसर रहता है, ऑनेस्ट ऑफिसर, और प्रेम चोपड़ा एक बहुत बदमाश रहता है। तो वो क्या करता है, वो एक अपने ड्राइवर को मार के और उसको फेंक देता है, तो बोलता है उन पर मर्डर चार्ज लगा देता है, और 14 साल जेल में रह के, सुनिए सुनिए बात सुनिए, 14 साल जेल में रह के आते हैं। तो 14 साल जेल में आने के बाद देखते हैं कि अरे इनके मर्डर के केस में मैं अंदर था 14 साल, ये तो बाहर घूम रहा है। उसको दौड़ाते हैं और जज के सामने मार देते हैं। तो बोलता है आप तुमने मर्डर कर दिया। तो इनके मर्डर में 14 साल में जेल भुगत चुका हूँ, डबल जेओपार्डी, मुझे एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, आर्टिकल 22। हाँ हाँ। हाँ, नहीं डबल डबल नहीं था, वो फॉरेस्ट ऑफिसर था। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। नहीं, सुनिए सुनिए, देखिए 21, 22, 23। नहीं वो आप अलग केस कह रहे हैं, देखिए जो मैं जो बता रहा हूं, अब जैसे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मर्डर केस में, जब तक डेड बॉडी और मर्डर वेपन नहीं मिलता है, तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को दिया जाएगा। तब तक आप उसको, हाँ, मर्डर वेपन और डेड बॉडी दोनों मिलना जरूरी है। नहीं तो कोई, हाँ तो फिर केस कर प्रूव करना मुश्किल है, फिर सरकमस्टांशियल एविडेंस देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे किसी को फंसाने के लिए, कि गरीब आदमी को पकड़ा, उसको मार दिया, उसका ये फेस वेस कर दिया, पहले डीएनए था नहीं, और बोल दिया इन्होंने मर्डर किया है। तो डेड बॉडी का मिलना और मर्डर वेपन का मिलना जरूरी है मर्डर केस को प्रूव करने के लिए। हम्म। अच्छा, सैडिस्ट होगा, होता है, कई लोग सैडिस्ट होते हैं। खैर छोड़िए, आप लोग उस सबके जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, ज्यादा उसमें चलेंगे बह जाएंगे तो बह जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, जो हमें एग्जाम सॉल्व करना है, हमें लॉयर नहीं बनना है ना। तो तो एग्जाम ये समझ में आ गया। पार्ट 13, इट कैन नेवर नेवर बी सस्पेंडेड। नहीं नहीं, जोनल काउंसिल तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1957 में बना था, वो स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, पार्ट 14 जो आप लोगों का फेवरेट पार्ट है, आप लोगों का सबसे पसंदीदा पार्ट क्या है? पार्ट 14। क्यों? क्योंकि आप लोगों से संबंधित है सर्विसेज। सर्विसेज यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विस। 308 टू 300 टू 323 सर्विसेज,
इसी में है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, इसी में है ऑल इंडिया सर्विसेज 312, इसी में यूपीएससी स्टेट पीएससी 315 टू 318। हाँ, जो जितने तैयारी करने वाले लोग हैं वो सिविल सर्विसेज को इतना क्यों चाहते हैं? सबसे ज्यादा चाहते हैं तैयारी करने वाले 310 को और 311 को। चार सेफ गार्ड हैं, दो सेफ गार्ड यहां है, दो सेफ गार्ड यहां, जिसके कारण सिविल सर्विसेज इतना हॉट केक है। अधिकतर लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करते हैं? अगर ये नहीं होता दो आर्टिकल तो सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते, बोलते ठीक है ये तो कोई जॉब जैसा है। सिविल सर्विसेज के पीछे सबसे जो बड़ा प्रोटेक्शन है, सेफ गार्ड है, दो प्रोटेक्शन यहाँ है, दो प्रोटेक्शन, और ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं, सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन देता है, किसी की मर्जी पे नहीं। 310 क्या कहता है? 310 कहता है कि अगर किसी को भी आप रिमूव करते हैं सर्विसेज खत्म होने के आधार पे, जैसे कि अगर आपने रेलवे अकाउंट्स क्लोज कर दिया, डिफेंस अकाउंट्स क्लोज कर दिया, या कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोई बंद कर दिया, और वहां पे आपने अपॉइंट किया था आईएएस ऑफिसर, तो इफ रिमूवल इज नॉट बेस्ड ऑन मिसकंडक्ट, द अपॉइंटेड ऑफिसर इज लायबल टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। समझ में आया? मिसकंडक्ट, करप्शन के आधार पे हटाए हैं तब तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सर्विसेज अगर समाप्त कर दिया और उसके कारण उनकी सर्विस जारी है तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ ऑल, जितना बचे हुए सर्विस है उसका पे, उसकी फैसिलिटीज का सारा जोड़ के देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चलो ये डिपार्टमेंट ही बंद कर दो, इनको छुट्टी कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। 310। हाँ वही करते हैं, हटा नहीं सकते। 310 कहता है कि इफ रिमूवल इज नॉट बेस्ड ऑन मिसकंडक्ट, द पर्सन इज लायबल टू गेट कंपनसेशन। तो दो सूरत है, या तो डिपार्टमेंट बंद कर दिया तो भी कंपनसेशन मिलेगा, या रिमूव कर दिया और मिसकंडक्ट का कोई केस नहीं है तो भी कंपनसेशन मिलेगा। मान लीजिए सरकार सोचती है डाउन साइजिंग करना है, तो जो सर्विस के समय अपॉइंटमेंट लेटर में सर्विस कंडीशन है वो इक्विवेलेंट कंपनसेट करना पड़ेगा। यानी सिविल सर्वेंट्स आर लायबल टू गेट कंपनसेशन एज सेड बाय द सुप्रीम लॉ। कोई सरकार के रहमो करम पे या उनकी मर्जी पे कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि दो सूरत में कंपनसेशन मिलेगा। 310 में कंपनसेशन की बात है, पहला कि अगर डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया, दूसरा हटाया मिसकंडक्ट के आधार पे नहीं। दोनों ही सूरत में पूरा का पूरा जो बचा हुआ सर्विस है उसका पूरा जोड़ के सैलरी, सारी फैसिलिटीज का इक्विवेलेंट अमाउंट देना पड़ेगा। तो सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि हम क्षतिपूर्ति भी दें और उनसे सेवा भी ना लें? तो सरकार वैसा करती ही नहीं है। क्या करती है? अगर मंत्रालय बंद भी किया या डिपार्टमेंट क्लोज भी किया या कुछ भी ऐसा किया तो उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देती है, या ऑफिसर ने स्पेशल ड्यूटी लगा देती है, या दूसरे सेक्रेटेरिएट में लगा देती है। मतलब ये नहीं है कि ऐसे भी टेम्पोररी जॉब है, ऐसा नहीं। और ये कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं कह रहा है, ये किसी सिफारिश के आधार पे, किसी नेता की मर्जी पे या किसी सुप्रीम लॉ कह रहा है। और ये दो बातें तो यहां हो गई, दो बातें यहां है। कैनॉट बी रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इन्होंने अपॉइंट किया है तो इससे या इससे ऊपर हटा सकते हैं, इससे नीचे नहीं हटा सकते। यानी ऑल इंडिया सर्विसेज वाले को अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है? प्रेसिडेंट, सेंटर।
नहीं, सर्विस, देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, लेकिन ग्रुप ए में, ग्रुप बी में तो सेंट्रल सर्विसेज आ गया, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है। हाँ है, बिल्कुल है। 311 भी सबके लिए है। अब स्पेशल, देखिए 311 भी ऐसा नहीं है कि आप आईआरएस बन गए तो आईएएस से कोई कम है, एक ही मामले में कम है कि जो सेंटर अपॉइंट करेगा, सेंटर के तहत काम करेंगे, सेंटर हटा सकते हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस क्यों पॉपुलर है? क्योंकि हटाने वाले ये, काम करना यहां, तो जो काम करना यहां, हटाने वाले ये, यानी चेक एंड बैलेंस है ना, यानी ये हटा नहीं सकते जहां काम कर रहे हैं वाले। बाकी कंपनसेशन दोनों को मिलेगा। बाकी 311 लोअर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोनों के लिए लागू होगा। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता, उनको डीओपीटी देता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। हाँ हाँ। हम्म। हाँ कर सकता है, सेंट्रल डीओपीटी, स्टेट नहीं। एक लाइन में समझिए, सिंपल लैंग्वेज में, आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पर्सनल्स को करते तो स्टेट कार्डर में काम करते हैं, लेकिन स्टेट हटा नहीं सकते, हटाएगी तो सेंटर। ठीक है। और ये चाहे ऑल इंडिया हो चाहे कोई भी, सबके लिए लागू होता है, ये भी सबके लिए लागू होता है, ये भी सबके लिए लागू होता है। ये 310 311 तो आईआरएस के लिए भी है, इंडियन फॉरेन सर्विस वालों के लिए भी है, रेवेन्यू सर्विस वालों के लिए भी है, सबके लिए है, पोस्टल सर्विस वालों के लिए भी है। आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस के साथ इनके अलावा है, इनके अलावा क्या है कि प्रेसिडेंट चूंकि अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, इसीलिए, और वर्क कर रहे हैं स्टेट कार्डर में, तो जहां वर्क कर रहे हैं वो हटा नहीं सकते, इनको हटवाने के लिए यहां करना पड़ेगा रिकमेंड। इस मामले में आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस वालों को एडिशनल एज है, बेनिफिट। अब 311 पूरा मैं कर दूं। हाँ, सेकंड क्या है, पर्सनल्स ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओनली इंक्वायरी स्टेज विदाउट कंप्लीशन ऑफ द सेकंड पनिशमेंट स्टेज। मतलब कोई भी चार्ज मिसकंडक्ट का लगता है किसी भी सिविल सर्वेंट पे, तो दो स्टेज होते हैं, एक इंक्वायरी स्टेज, एक पनिशमेंट स्टेज। तो पहली हियरिंग में के बाद हटा नहीं सकते। पहली हियरिंग को कहते हैं, पहली हियरिंग को कहते हैं इंक्वायरी स्टेज। फिर उनको मौका दिया जाता है कि आप पे ये चार्ज है, आपके खिलाफ ये इंक्वायरी है, आप पे ये अपराध है, ये आप अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए, टाइम मिलेगा। सेकेंड स्टेज आता है पनिशमेंट स्टेज। पनिशमेंट स्टेज से पहले हटा नहीं सकते, ये नहीं कि तुरंत झटपट 2 दिन में हटा दो चलो। अपना केस लड़ने का पूरा उनको मौका दिया जाता है, अपने आप को निर्दोष साबित करने का, अपने खिलाफ इंक्वायरी के खिलाफ सबूत देने का, प्रेजेंटेशन देने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। जब प्राइवेट जॉब में क्या है, कल से मत आना, है ना, सेठ जी बोल दिए कल से मत आना। लेकिन इनके साथ है ऐसा कि सेठ जी तो यहां नहीं है, सेंटर या गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट कह दे कल से मत आना, प्रेसिडेंट भी नहीं कह सकती, नहीं हटा कह सकती कि भाई आप, हाँ, इंक्वायरी स्टेज, पनिशमेंट स्टेज, और इस बीच में कोर्ट का भी रास्ता खुला है। ऐसा अगर झूठा केस लगाया तो कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमारे पे जो ये चार्जेस हैं, इसका कोई सबूत इनके पास नहीं, जो ये सारे फ्रिवुलस चार्जेस हैं, सारे गलत चार्जेस हैं। तो एक तो डिपार्टमेंट ही प्रोटेक्शन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दे रहा है, ऊपर से जुडिशरी का भी रास्ता खुला है। जाते जाते हैं बहुत से लोग, ऐसा होता है, कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, जिसमें आर्टिकल 136 है,
आर्टिकल 141 है, आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 144 है। ऐसा कई बार हुआ है कि लोअर कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, पूरी तरह से, पूरी तरह से पलट दिया। इसीलिए कई बार लोग होते हैं ना कि लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर भी दिया तो बोलते हैं मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। हाँ, तो जब प्रूव हो जाएगा तब ना। जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाँ हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अगर दे दिया डिसीजन कि इनका चार्जेस गलत है, लोअर कोर्ट का कन्विक्शन भी गलत है, तब पूरा का पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कोई सरकार चाहेगी कि अपने खजाने से बिना काम किए कंपनसेशन देना पड़े और कोर्ट में किरकिरी हो जाए कि पब्लिक पर्स से खर्च कर दिया और उस काम कुछ लिया ही नहीं? क्योंकि सरकार का पैसा नहीं है ना, प्राइवेट मनी, पब्लिक मनी है, वो पब्लिक पर्स है। तो कोई सरकार चाहेगी ऐसा किरकिरी? तो कोई सरकार गलत केस लगाने के पहले 100 बार सोचेगी? नहीं। तो सरकार की किरकिरी हो जाती है कई बार कोर्ट में, जैसे अभी हुई केजरीवाल के केस में। केजरीवाल के केस में पूरा का पूरा उन्होंने बोल दिया, पूरा तरह पूरे फ्रिवुलस केस है। मनी ट्रेल मिला कहां? अगर इन्होंने पैसा है तो पैसा कहां मिला, कहां इतने छापे मारे, कितना करोड़ मिला बताइए? तो बोले नहीं नहीं, गोवा के इलेक्शन में खर्च कर दिया उन्होंने। तो हाँ, तो हाँ गोवा पर, तो लेकिन उसका ट्रेल दिखाइए ना, चेन दिखाइए कि जो खर्च हुआ है उसका चेन साबित कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग किया है इन्होंने, साबित तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। हाँ, बोला कि पूरा जो है पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, और आप बोल रहे हैं शराब घोटाले में 100 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने। जबकि जो जो रेड्डी ब्रदर्स हैं या जो जो साउथ इंडिया के जो लीकर बैरन है, उनसे तो कभी इनकी मुलाकात भी नहीं हुई, उसको भी सबूत नहीं। तो तो ईडी का भी केस ढीला पड़ गया। तो इसमें सरकार की किरकिरी होती है कि नहीं? ये मैसेज जाता है ना कि देखो सरकार तो मिसयूज कर रही है, सच में मिसयूज कर रही है, कि अपने विरोधियों के खिलाफ मिसयूज कर रही है सरकार। कोर्ट ने किरकिरी कर, मतलब इंस्टीट्यूट। और कई बार कहते कि सीबीआई जो है सरकारी तोता है, केज, केज इन पैरोट, पैरोट इन केज। तो उस पर धब्बा लग जाता है ना। सीबीआई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसमें कई ऑनेस्ट लोग इतना डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं, और उस पर ऐसा धब्बा आ जाए तो उनके मोराल डाउन हो जाएगा ना। हम्म। वो तो डाल डाल किसी को सकते हैं, वो बात नहीं है कि सीएम है तो अपराध नहीं कर सकते। साबित करना पड़ेगा ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा। चार्जशीट इज नॉट कन्विक्शन, चार्जशीट इज नॉट कन्विक्शन। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे फेवरेट पार्ट सिविल सर्विसेज की तैयारी जो भी करने वाले हैं उनको 310 और 311, तो वो हमेशा इसी के चलते ज्यादा तैयारी करते हैं। अगर ये दोनों हट जाए तो इतने लोग तैयारी ही ना करें। नहीं पता है ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना कि हाँ प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन बहुत है हाँ, स्पेसिफिक बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन जो उनसे ज्यादा बुद्धिमान लोग उनको बता के तो रखते हैं कि चलो आप इतना मत जानो, इतना जानो कि बहुत अच्छा है, बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत आपको पूरा बनिएगा, सिंपल लैंग्वेज। लेकिन आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज नहीं जानना है, आप लोगों को तो विशेष लैंग्वेज जानना है 310 311 समझ में आ गया? तो 312 तो ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा। हम्म। दे आर अपॉइंटेड बाय यूनियन बट दे वर्क इन स्टेट कार्डर। कार्डर जो होता है स्टेट्स का होता है, ठीक है? तो कार्डर मैनेजमेंट भी डीओपीटी का काम है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डीओपीटी का हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है सेंटर में। हाँ, जितेंद्र सिंह जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, कैबिनेट नहीं है, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत ट्रस्टेड मिनिस्टर होते हैं, जिन पे प्राइम मिनिस्टर को ब्लाइंड फेथ है कि कभी दगा नहीं करेगा, हाँ उसको, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत सारा काम है ना, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ज्यादातर, मोटे तौर पे। हाँ
यूपीएससी तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भले एडवाइजरी है लेकिन है तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ना 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 ना, किसी मिनिस्ट्री में नहीं आएगा। यूपीएससी इज गार्जियन ऑफ मेरिट सिस्टम। ऑल्दो इस रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, बट इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस इंडिपेंडेंट बॉडी। कौन? हाँ 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 हाँ, तो जैसे बहुत बार रिकमेंडेशन यूपीएससी के कमेटी ने किया कि 21 से 25 साल कर दो उम्र, लेकिन सरकार ऐसा हाथ जलाएगी नहीं ना, क्योंकि विलेज एरियाज में लोग बोलते हैं कि मैच्योर ही 25 साल में होते हैं। 25 साल में तो आंखें खुलती है कि सिविल सर्विसेज है क्या, फिर तैयारी करते हैं। शहरी लोग तो जल्दी कर लेते हैं, तो सरकार कौन हाथ हाथ जलाएगी? ठीक है, यानी तो ज्यादातर तो ये है, वोट बैंक में है कि एज बढ़ाओ और अटेम्प्ट बढ़ाओ। हम्म, हाँ, पहले था वाजपेयी सरकार ने 28 से 30 किया था, फिर 30 से 32 हो गया। तो हम्म, जबकि कई कमेटियों ने रिकमेंड किया था कि घटाओ, न्यू ब्लड चाहिए, यंग ब्लड चाहिए, यंग ब्लड लोग ज्यादा एनर्जेटिक हो काम करेंगे। लेकिन सरकार नहीं मानती है बहुत सारी बात यूपीएससी। हाँ हाँ, ये तो हमेशा कंट्रोवर्सी, अंग्रेजों के समय से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि उस समय आईसीएस कहते थे। 90, हाँ, उस समय 19 टू 30, 21 टू 19 कर दिया था। हाँ, तो न, हाँ, 1853 में पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए मेरिट सिस्टम पे एग्जाम सिस्टम स्टार्ट हुआ। सेंटर लेकिन लंदन में रहता था। हाँ, 1921 में सेंटर इंडिया में भी स्टार्ट हुआ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सरकार क्यों देगी? जो अमीर घराने के, जो अमीर लोग हैं वही तैयारी कर पाते थे। जो एग्जाम देने के लिए तो इतना भारी भरकम टिकट लगेगा, वो कौन सरकार क्यों देगी? सरकार ने। हम्म, 1853। चलिए आगे बढ़े। तो हाँ, 5 मिनट का ब्रेक, अच्छा ठीक।